ریڈیو پاکستان سامعین، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 33ویں برسی کے حوالے سے آئیے آپ کو ریڈیو پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن عوام کی آواز شہید بھٹو کے لیے کراچی اسٹوڈیوز لیے چلتے ہیں۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی اور پھر 4 اپریل کو راولپنڈی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لے جایا گیا۔ وہ اس شان سے چلے کہ فیض کا شعر پہلی مرتبہ اپنے معنوں سے آشنا ہوا۔ مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں، جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اس وقت پیش خدمت ہے فیچر جو سوئے دار چلے۔ تحریر ہے رشید بٹ کی، آوازیں شہاب الدین شہاب، شہناز وسیم اور تنویر اقبال، پروڈیوسر بشرا نور خواجہ۔ دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، اسی کو ہم نے سرے شام کھو دیا لوگو۔ 14 اگست 1947 کو نقارہ نیم شب بجتے ہی بر صغیر تقسیم ہو گیا اور بھارت اور پاکستان وجود میں آ گئے۔ بھارت نے اپنی یکجہتی کی ضمانت اور وفاق کے دوام کی خاطر 1951 میں عرفہ ترین قانون آئین ہند تشکیل دیا۔ 5 سال بعد پاکستان میں 1956 کے آئین نے آزادی ہند ایکٹ مجریہ 1947 اور ترمیم شدہ حکومت ہند ایکٹ مجریہ 1935 کی جگہ لی اور پاکستان کی یکجہتی کا نگہبان اساسی قانون بن گیا۔ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد 1956 کا آئین منسوخ کیا گیا تو پاکستان کی یکجہتی کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ 1969 میں ایک اور مارشل لاء نے 1962 کے آئین کو تار تار کیا تو 2 سال کے اندر اندر پاکستان دلخت ہو گیا۔ نہ تو 1956 کا آئین حقیقی عرفہ ترین قانون تھا اور نہ ہی یہ سعادت 1962 کے آئین کو حاصل ہوئی۔ دونوں میں سے کوئی بھی آئین حقیقی معنوں میں مقتدر اور نمائندہ اسمبلی کی تخلیق نہ تھا۔ یوں وہ دونوں نیم آئین منسوخ ہوئے۔ ان کی منسوخی تمکن تو تھی، مگر وہ بجائے خود ایسے نہ تھے کہ ملک مکمل تباہی کی راہ پر چل نکلتا۔ صرف 1973 کے آئین کو حقیقی عرصہ ترین قانون بننے کا بے مثل اعزاز حاصل ہوا۔ یہ آئین ایک مقتدر اور نمائندہ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ اس بدیہی سبب جہاں ہم ماضی میں 2 بار یہ دیکھتے ہیں کہ مارشل لاء نافذ ہوتے ہی آئین منسوخ کر دیا گیا، وہاں موجودہ مارشل لاء کو 1973 کے آئین کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی اور وہ اسے صرف معطل ہی کر سکا۔ یہ ایک بالکل جداگانہ موقف ہے کہ ماورائے قانون مارشل لاء کا نفاذ آئین کو خس و خاشاک کی مانند بہا لے جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں باہم وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ قیام پاکستان کے ٹھیک 31 سال 1 ماہ بعد ہونے والے اس اعلان میں کہا گیا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف 16 ستمبر 1978 کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے۔ انہوں نے یہ ثبوت دینے کا تہیہ کر رکھا ہے کہ آئین ہو یا نہ ہو، پاکستان میں سب سے زیادہ بااختیار کرسی چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ہے۔ بہت خوب، مگر کون ہے جو اب جان پہ کھیل کے یہ دعویٰ کرے کہ 1973 کے آئین میں ہنوز کچھ سانسیں باقی ہیں؟ پاکستان کو مویشی خانہ اور اس کے بدنصیب اور خدائی خار عوام کو مویشی بنا کر رکھ دیا گیا ہے، لیکن ایسا لمحہ آ جاتا ہے جب مجبور جانور بھی جان لیتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ افغانستان کا عظیم کھیل 28 اپریل 1978 کو ختم ہو گیا۔ یہ سنجیدہ تاریخی فیصلہ دینا قبل از وقت ہوگا کہ کھیل عظیم تھا یا معمولی۔ بہرحال 16 ستمبر 1978 کو یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس روز آخری چوکی کی دھن بجی۔ ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ 1977 کی فوجی کارروائی بہت بڑا جرم تھی، لیکن 1973 کے آئین کی تجہیز و تقسیم کو تاریخ کی FIR میں اس سے بھی بڑا جرم قرار دیا جائے گا۔ 16 ستمبر 1978 کا دن 10 مئی 1857 یا 14 اگست 1947 سے کم اہمیت کا حامل نہ ہوگا۔ مجرم بلا شبہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ تاریخ انسانی میں ایک شے مکافات عمل ہے، اور تاریخی مکافات عمل کا ایک ضابطہ یہ بھی رہا ہے کہ
جابر کی تباہی کے لیے ہتھیار مجبور نہیں ڈھالتے، بلکہ جابر خود ہی اپنی تباہی کا اہتمام کرتا ہے۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جاں گنوا کر تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو تاریخ کے حالیہ دور کا ایک نابغہ تھا، وہ صدیوں کا بیٹا تھا اور رہے گا۔ وہ سندھ ساگر تھا اور رہے گا۔ سندھ ساگر جس کے کئی نام ہیں، وہ اباسین ہے، وہ شیر دریا ہے۔ گو اس نے لاڑکانہ کی مٹی سے جنم لیا، لیکن آج اس دریا کے دونوں کناروں پر آباد دیہات، قصبوں اور شہروں میں اس کا اور اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کا نام روزمرہ کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ بھٹو کا نام، اس کی سیاسی بصیرت اور تدبر نقش دوام کا روپ دھار چکے ہیں۔ اگر مجھے قتل کر دیا گیا، عدالت میں ذوالفقار علی بھٹو کا محض آخری بیان ہی نہیں بلکہ ایک ادب پارہ ہے۔ اس میں سیاست بھی ہے، سیاسی پیشگوئیاں بھی ہیں، ایسی پیشگوئیاں جو سر مقتل کی جائیں کسی شخص سے اس کی توقع کم ہی کی جا سکتی ہے۔ اس طویل تحریر سے اگر سیاست کو نکال دیا جائے تو بلا شبہ یہ ایک ایسا ادبی شاہکارہ ہے جو ایک بلند پایا ادیب یا شاعر ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے پوئٹ لوریٹ کا لفظ ہے، جس کا اردو ترجمہ شاید ممکن ہی نہیں۔ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ تحریر ایک ایسا شخص تخلیق کر رہا تھا جو سال بھر سے قید تنہائی میں تھا، جس کے پاس حوالہ جاتی مواد نہ تھا۔ پڑھتے پڑھتے آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے کوئی آلہ یادداشت لگا رکھا تھا؟ کیا یہ مبدأ فیاض کا عطیہ تھا؟ یہ تحریر آنے والے ادوار کے مورخوں کے لیے ایک انمٹ اور ناقابل تردید حوالہ جاتی دستاویز ہوگی۔ اپنی اس تحریر میں ایک جگہ ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں، ہم بعد مخالف کے باوجود 1970 میں سرخرو نکلے، تب بھی وہی ناقابل شکست جذبہ تھا جو 1977 میں غالب نظر آیا۔ 1970 میں بھی میں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میں نے ملک کے گوشے گوشے کا دورہ کیا، میں خاکروبوں کی جھگیوں میں گیا، میں کچی آبادیوں میں گیا، میں نے ہر جا اپنے نقوش پاک چھوڑے، میری آواز ہر گھر میں سنائی دی۔ میں ایک گاؤں میں 3 بار گیا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ وہاں ایک پیر کا موروثی اثر و رسوخ کام دکھا جائے گا۔ میں 4تھی بار اس گاؤں میں پہنچا تو مکھیا کہنے لگا، سائیں منجا، کیوں ہمیں شرمندہ کرتے ہو؟ ہمارے ووٹوں کا آپ سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ آنسو میری ہی نہیں بہت سی پلکوں پر جھلملا رہے تھے۔ یہ گاؤں کی کہانی ہے جو صدیوں میں پہلی بار ایک گنہگار سیاستدان نہیں سزائے موت یافتہ مجرم کے حق میں اپنے پیر سے دستکش ہوا تھا۔ ہماری جیت چلی تو میرے کانوں میں جیے بھٹو کی سزائیں گونج رہی تھیں، اور دھیرے دھیرے یہ سزائیں فاصلوں کی دھند میں کھو کر رہ گئی۔ شاید میں اس دھرتی کے باسی غریب دلوں میں اتنی گہرائی تک گھر کر چکا تھا کہ بہت سے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ممکن ہے اسے مجذوب کی گھسی پٹی پر تصور کیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا نام برسات میں ٹپکنے والے گھر میں اور ہر چھت تلے روزمرہ کی صورت اختیار کر چکا ہے، میں اس دھرتی کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوں۔ میرا عوام سے ایسا ازلی اور ابدی بندھن ہے جسے توڑنا فوجوں کے بس کی بات نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک اور موقع پر کہتے ہیں، 5 جنوری 1948 کو اپنی 21ویں سالگرہ پر میں لاس اینجلس میں تھا۔ اس روز لاڑکانہ سے 2 تحفے موصول ہوئے۔ ایک تحفہ تھا سلونے کی 5 جلدوں پر مشتمل نیپولین بوناپارٹ کی سوانح، یہ بڑا قیمتی تحفہ تھا، اور دوسرا تحفہ تھا سستا سا ایک پیمفلیٹ۔ نیپولین سے میں نے سیاست کا درس لیا اور اس پیمفلیٹ کے ذریعے افلاس کی سیاست سے آشنا ہوا۔ یہ پیمفلیٹ ان الفاظ پر ختم ہوتا تھا، دنیا بھر کے مزدوروں،
मुस्तैद हो जाओ। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं मां सिवाय अपनी जंजीरों के, और जीतने को सारी दुनिया तुम्हारे सामने है। इन्हीं अफकार की रौ थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो कह उठे। जुंटा ने ट्रिब्यूनल कायम किया और उसकी तरफ से खुद ही फैसला सुना दिया। ये पढ़ते हुए पीरजादा कासिम सिद्दीकी का एक शेर जहन में आन लपकता है कि वक्त के सैले रवा ने यही साबित किया। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। लेकिन एक बात, उस शख्स को तो शायद हाथ मलने का मौका ही नहीं मिला। तारीख और अहवाल वाक़यात पर इतनी गहरी नजर इंसान को बरताए हैरत में डाल देती है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने एक आजाद और जमहूरी हिंदुस्तान की क़यादत संभालने से कबल ये आखिरी किताब अय्याम असीरी में लिखी थी। उसमें उन्होंने ऑस्ट्रोविस्की की तसनीफ औलाद कैसे ढाला गया से एक इक़्तिबास दिया है। इंसान के लिए सबसे प्यारी शय उसकी जिंदगी है, और चूंकि ये एक बार ही मिलती है, लिहाजा इंसान यूं न जिए कि बुज़दिली और असफल अमल से इबारत माजी का खौफ हर लम्हा दामनगीर रहे। यूं न जिए कि बरसों तक बेमकसद जुल्म का शिकार रहे, बल्कि दमे वापसी उसके होठों पर ये अल्फाज होने चाहिए, मेरी सारी जिंदगी और तमाम तर कुव्वत दुनिया में बनी नौ इंसान की आजादी के अरफा मकसद के लिए वक्फ रही। खुद पाकिस्तान के इब्तिदाई जमाने का जिक्र करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मार्च 1948 को दस्तूर साज असेंबली में खान अब्दुल गफ्फार खान की अव्वलीन तकरीर के बाद वजीर आजम लियाकत अली खान के खिताब का जिक्र किया कि हमने किसी को लीग में शामिल होने पर मजबूर नहीं किया। हर शख्स अपनी पसंद की तंजीम का इंतखाब करने और उसमें शामिल होने की आजादी रखता है, बशर्ते कि वो रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाली तंजीम न हो। मुसलमानों ने अजीम जिद्दोजहद और अनगिनत कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया है। मेरी दानिश में अगर हमने किसी ऐसी तहरीक को न कुचला जिसकी गरज वायद पाकिस्तान की तबाही हो, तो ये बात फर्ज की अंजामदही में नाकामी के मुतरादिफ होगी। मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करता हूं, खुदा करे ये गलत साबित हो। न वो बदले न दिल बदला, न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे एतबारे इनकलाबे आसमां कर लूं। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक अदीब, शायर, सहाफी और कॉलम निगार बनना चाहते थे। उन्होंने 12 जनवरी 1967 को ढाका से शाये होने वाले अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान ऑब्जर्वर में माई डेब्यू इन जर्नलिज्म के उन्वान से मजमून या कॉलम लिखा। इसके अलावा उन्होंने ज्यादातर जमाने तालिब इल्मी में मुतअद्दिद फिकाहिया कॉलम, मबसूत मजामीन लिखे, मसलन दुनिया का आफाकी तस्वुर, इस्लामी मिरास के खदोखाल, न्यूयॉर्क के असरात वगैरह वगैरह। आमिर वक्त ज़ियाउल हक के जमाने में जब अदीबों और सहाफियों पर इब्तिला आई तो जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसे नक्शगर की उंगलियों ने भी उसे नक्शे दवाम का हिस्सा बना दिया और उन्होंने कहा, सहाफियों और अदीबों को थोक के भाव गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें उल्टा लटकाने की धमकियां दी जा रही हैं, मार्शल लॉ ज़ाब्तों की आड़ में प्रिंटिंग प्रेस चोरी किए जा रहे हैं, सरसरी समाज की फौजी अदालतों ने सरकारी कंट्रोल में चलने वाली टेलीविजन और रेडियो मुलाजमीन को सख्त सजाएं सुनाई है। जब मैं कोट लखपत जेल लाहौर में था तो जेल सहाफियों से भर चुकी थी। अब जो मैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में हूं तो यहां भी सहाफी और टेलीविजन के मुलाजमीन ही बंद नजर आते हैं। दुनिया में कहीं भी सहाफियों को कोड़े नहीं लगाए जाते। पाकिस्तान में फौजी हुकूमत को ये इम्तियाज हासिल है कि उसने सहाफियों को कोड़ों की सजा दी। इस हुकूमत ने तो सहाफत के मौजिज पेशे को खुद जलीलो रुस्वा किया है। वो सहाफियों पर यूं सवार है गोया कोई मंगोल घोड़े की पीठ पर बैठा हो। मंगोल घोड़सवार जिस चाबुक के जोर पर घोड़े को सर पर दौड़ाता था, ये हुकूमत सहाफियों को चाबुक मार मार कर उसी तरह सर पर भगाना चाहती है। कौमों का उरूज जवाल सूरज के तुलू और गुरूब की मिसल होता है। तहजीब और सकाफत की बदौलत कुछ कौमें अजमत की बुलंदियों पर जा पहुंचती हैं और फौजों के जरिए हुकूमत के तख्ते उलटने और साजिशों का शिकार होने के सबब तारीख कई कौमों को मलबे के ढेर में बदल के रख देती है। ये मौका है कि मेरे लिए जिन आलमी रहनुमाओं और मुल्कों ने इजहार तशवीश किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। मेरे लिए ये इजहार तशवीश करके उन्होंने दरअसल पाकिस्तान के अवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। मैं जहां भी हूं अपने मुस्तकबिल के बारे में इससे ज्यादा कुछ कहना अपने वकार और खुददारी के मुनाफी समझता हूं। ताहम इतना जरूर चाहता हूं कि नेहा खाने दिल में छुपा एक राज
अपने हमवतनों की नजर कर दूं। मैं लड़कपन ही से जोश व खरोश और पामर्दी के साथ बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ नबर्द आजमा चला आया हूँ। मैंने मुंबई के कैथेड्रल जॉन कॉनन हाई स्कूल में तालीम पाई। उसका शुमार बरसगीर के बेहतरीन इंग्लिश स्कूलों में होता था। तब स्कूल के तालिब इल्म की हैसियत से मैं भी अपनी सियासी सरगर्मियों के सबब सख्त मुश्किलात का शिकार होता रहा। लेकिन इससे भी पहले 1935 में जब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी, एक रोज मुंबई के गवर्नर लॉर्ड ब्राबॉन ने मेरे वालिद को, जो उस वक्त हुकूमत मुंबई में वजीर थे, तीनों बेटों समेत चाय पर मदऊ किया। मेरे सबसे बड़े भाई इमदाद अली को, जिसकी उम्र उस वक्त 21 साल थी, मुतारिफ करवाया तो लॉर्ड ब्राबॉन ने कहा, बड़ा वजीह नौजवान है। इमदाद अली ने एक मुहज्जब और बाअखलाक एरिस्टोक्रेट के लहजे में जवाब दिया, सर, मैं फूला नहीं समा रहा कि ये एजाज मुझे अपने वजीह गवर्नर की तरफ से दिया गया है। मेरी बारी आई तो मैंने महीन आवाज में कहा, हिज एक्सीलेंसी गवर्नर इसलिए वजीह है कि वो हमारे खूबसूरत वतन के खून पर पल रहे हैं। लॉर्ड ब्राबॉन धक से रह गए। उन्होंने लम्हे भर को हैरत से मुझे देखा और फिर मेरी तरफ उंगली से इशारा करते हुए मुस्कुराकर मेरे वालिद से मुखातिब हुए, सर शाहनवाज, आपके इस बेटे में एक शायर और एक इनकलाबी छुपा हुआ है और इन बरसों ने मेरी यही पहचान कराई है, एक शायर और इनकलाबी, और मैं दमे वापसी तक शायर और इनकलाबी ही रहूंगा। भुट्टो साहब की सूली के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी मर्जी से बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बेटी अपनी आखिरी मुलाकात में बताती है कि भुट्टो साहब ने क्या कहा। आज रात मैं आजाद हो जाऊंगा। उनका चेहरा दमक रहा था। मैं अपनी अम्मा और अब्बा से मिलूंगा। मैं लाड़काना में अपने अजदाद के पास लौट रहा हूं। मैं इस मिट्टी का हिस्सा बन जाऊंगा, महक और हवा बन के फैल जाऊंगा। रात ढलने लगी है सीनों में, आग सुलगाओ आपकीनों में, दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में। देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे। भुट्टो हमारे लिए और बहुत से लोगों के लिए आज भी जिंदा है कि शहीद मरा नहीं करते। हर आए दिन ये खुदावंदगाने महरो जमाल लहू में गर्क मेरे गम कदे में आते हैं, और आए दिन मेरी नजरों के सामने उनके शहीद जिस्म सलामत उठाए जाते हैं। मकाम पर राह में जच्चा ही नहीं, जो कुएं याद से निकले तो सामीन, अभी आप फीचर सुन रहे थे सुएदार चले। तहरीर रशीद बट की थी, जबकि जो आवाजें इस फीचर में शामिल थीं और आपकी समाअतों तक पहुंची वो शहाबुद्दीन शहाब, शहनाज वसीम और तनवीर अकबाल की थी। जबकि इस फीचर को तैयार करने में हाथ था प्रोड्यूसर बुशरा नूर ख्वाजा साहिबा का। FM 93 के नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं खुसूसी नशियात अवाम की आवाज शहीद भुट्टो, कराची स्टूडियो से। पाक चीन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसालें दी जाती हैं और उसके बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। उन्होंने वन चाइना पॉलिसी की बुनियाद रखी। ताइवान को उस वक्त दुनिया के तमाम दीगर ममालिक तस्लीम किया करते थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि चाइना एक है। इस मौके पर हम चीनी निजात उर्दू शायर चांग शी शुआन, जिनका उर्दू नाम इंतखाब आलम है, उनकी उस नोहे के हवाले से आपको तनवीर इकबाल की आवाज में हम सुनवा रहे हैं, जो कि उनके मजमूए कलाम गुल बांगे वफा में शामिल है। तो आइए सुनते हैं। तीरगी में आसमां से एक सितारा गिर गया, खित्ताए आसार फरदा जुल्मतों में घिर गया। वो सदा इंसाफ की उठी है हर सू बार बार, दामने उम्मीद आखिर हो गया है तार तार। हर तरफ अम्बाज हैं खामोश अशकों की रवां, दहर का हर फर्द है तेरे लिए नोहा कना।
अपनी धरती के लिए तू वक्त का इनाम है, कौम की हर लौहे दिल पर नक्श तेरा नाम है। ये समझ ले आज की दुनिया नहीं है बेशऊर, ले गवाही वक्त से तू है सरासर बेकसूर। जी जनाब, अभी आपने नोहा समात फरमाया जो कि चीनी निजात शायर जिनका उर्दू में नाम जो है वो इंतखाब आलम है, उनकी आवाज में था, उनकी शायरी थी और आवाज थी तनवीर इकबाल की। जी हाँ, और इनका चीनी नाम चांगशी शुआन है। और इस बारे में हम एक मरतबा फिर अपने सुनने वालों को बता दें कि इन्होंने जो मजमूए कलाम इनका है गुले बांगे वफा, उसमें उन्होंने इस नोहे को तहरीर किया था जब भुट्टो साहब की शहादत हुई थी, तो ये उन्होंने तहरीर किया था जो हमने अपने सामीन की खिदमत में पेश किया। जी, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से जब बात हो रही है तो थोड़ी सी उनकी शख्सियत के हवाले से भी बात करें। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो खूब जानते थे कि जालिम और जुल्म की हयात बहुत मुख्तसर है और उसका अंजाम बदतरीन है। आज 33 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी जिस्मानी जुदाई का जख्म रोजे अव्वल की तरह ताजा है, जबकि उनका दिया हुआ दर्ज जो कि उनकी सोच और फिक्र, आदर्श और नजरियात, फलसफा सियासत और सबसे बढ़कर सब्र इस्तकामत, हौसले और अज़्म के साथ जुल्म से टकराने का हौसला हमारा विरसा है और मशाल राह है। अवाम की हुकूक की बहाली की खातिर जान का नजराना पेश करके वो आज भी अवाम के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का एक बड़ा कारनामा 1973 का मुत्तफिका आइन था, जिसने नए पार्लियामेंट्री सिस्टम की बुनियाद रखी थी। उन्होंने सऊदी पाक और चीन पाक ताल्लुकात को फरोग दिया। इसके अलावा OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के तहत 1974 में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्किद कराई। इसके अलावा शिमला मुआहदे को भी एक अहम उनका कारनामा तस्वुर किया जाता है, जिसके तहत 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को रिहाई भी मिली थी और भारतीय कब्जे से तकरीबन 13,000 किलोमीटर का जो इलाका है वो भी छुड़वाया था इस शिमला मुआहदे के तहत जुल्फकार अली भुट्टो ने। और अब हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की उस तकरीर से इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो उन्होंने 30 जुलाई सन 1972 के दिन बदीन में एक जलसे आम से खिताब में की थी। मेरे अजीज साथियों, आज सिंधिया में उर्दू में दुनिया में उर्दू में इसलिए क्योंकि आप सब उर्दू समझते हैं और इसके अलावा यहाँ सेटलर्स भी हैं और हमारे दूसरे फौजी नौजवान भी हैं, सब खड़े हैं। तो जब सिंधी लोग उर्दू समझते हैं तो क्यों नहीं उर्दू में मैं तकरीर करूं, और अगर उर्दू में मैंने तकरीर की तो इसमें कौन सा जुर्म हुआ, अगर मैंने सिंधी में तकरीर की तो कौन सा जुर्म हुआ। ये छोटी बातें हैं, ये मामूली बातें हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर ज़हन और ख्यालात ठीक होने चाहिए। अगर ज़हन और ख्यालात ठीक है तो किस ज़बान में भी तकरीर हो सकती है। कहना तो बड़ा आसान है कि जी हमें एक मजबूत कौम चाहिए, हम एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हो। तो कैसे होगा खुशहाल पाकिस्तान, कैसे होगा मजबूत पाकिस्तान? उसका नुक्सा भी तो हमें बचाए। गरीब ऐसे सिर्फ कहने से, सिर्फ नारों से पाकिस्तान मजबूत न बनेगा। कैसे पाकिस्तान मजबूत बनेगा? जब पाकिस्तान की अक्सरियत गरीब जो है वो कमजोर है, जब गरीब कमजोर है, जब अक्सरियत कमजोर है, जब वो लोग जो देहातों में और खेतों में रहते हैं वो कमजोर है, जब उनके पास खाने के लिए जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, जो अच्छी तरह से रह नहीं सकते, वो कैसे मजबूत हो सकती है? कमजोर लोग है और मजबूत कौम किसी सूरत में मजबूत कौम नहीं बन सकती ऐसे। आप सारी दुनिया को देख लें, अगर आप बड़े बड़े मुल्कों को देखें, आप अमेरिका को देखें, अमेरिका क्यों है मजबूत? क्योंकि अमेरिका के लोग मजबूत हैं, क्योंकि अमेरिका के गरीब खुश है। और रूस में क्यों है, रूस क्यों मजबूत है? क्योंकि रूस के लोग खुश है, उनको नौकरियां मिलती है, गुजरान मिलता है, अच्छी तालीम मुफ्त में मिलती है, इलाज के लिए इंतजाम होता है और तनख्वाह ऐसी होती है जो काम पर, मदद पर, मेहनत पर, पसीना बहने पर मिलती है, घर बैठे नहीं मिलती है, निजामों में मिलती है। जो लोग काम करते हैं उनको हक है, जो लोग हाथ अपने घर में करते हैं खेत में, उनको हक है कि वो काम से अपनी मेहनत का इजाफा मिले।
देखते हैं ये एक अवामी हुकूमत है, इसलिए हम भी रात दिन काम कर रहे हैं, हम भी मजदूरी से काम कर रहे हैं, हम भी मजदूर हैं। कौन कहता है कि हम सदर वगैरह हैं? हम इस मुल्क के मजदूर हैं, इस मुल्क के हम गरीब हैं, इसलिए हम गरीबों के साथ हैं। तो सवाल है ये मेरे अजीज साथियों, सुन लो अच्छी तरह से, कान खोल के सुन लो कि इन लोगों को, ये चंद लोगों ने जो अत्याचार किया था पाकिस्तान पर, ये नहीं चाहते थे कि इस गलत निजाम का मुकाबला हो, और लेकिन ये इनकलाबी जमात ने, इस इनकलाबी जमात ने जो सोए हुए अवाम थे उनको उठाया, उनको जगाया और उनको खबरदार किया, और इसलिए एक बड़े तूफान में अल्लाह ताला के फजल के साथ ये जमात कामयाब हुई। हमें सबके साथ इंसाफ करना है, हम सबसे इंशाअल्लाह ताला इंसाफ करें, हम सब हमेशा हक और सच पर जाएंगे, इस किस्म की हम खिदमत करेंगे। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि खुशहाली आए मुल्क में, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे फैसले हों कि अक्सरियत में उसको मुफाद हो। इसलिए हमें किसी फर्द के साथ, किसी जात के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ मोहब्बत और इज्जत है अवाम के लिए। इसलिए बात यह है कि हमें किसी जात के साथ, किसी फर्द के साथ दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो मुल्क है, ये मुल्क भी तरक्की करे। इस मुल्क के गरीबों ने कौन सा नुकसान किया है? क्या इस मुल्क के गरीब मेहनत नहीं करते? क्या इस मुल्क के गरीब अपनी दिलो जान से काम नहीं करते? मेहनत तक गरीब है। आपको ऐसे लोग मेरा ख्याल है सारी दुनिया में न मिलेंगे, सारी दुनिया में ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। फराख दिली है हमारे गरीबों की, मेहमान नवाज है, बेचारों के पास कुछ नहीं होगा। मैंने सारे पाकिस्तान के दौरे किए हैं, मैंने सरहद के, पंजाब के, लेकिन झूपड़ी में अगर मैं जाता था तो मर्दान में, नहीं तो डेरा इस्माइल खान में, कोलाची में, जेलम में, मियांवाली में, मैं ईमान से कहता हूँ गरीबों के घर जाता था तो कोई न कोई बेचारे रोटी आके सामने रखते थे और लस्सी कहते थे, लस्सी पी के जा भुट्टो खा। शामीन, भुट्टो शहीद को बेशक दुनिया की अदालत में सजा हो गई है, लेकिन दुनिया की अदालत से बड़ी भी एक अदालत है और वो खुदा की अदालत है। जालिम आमिर तो अपने अंजाम को पहुंचा, जबकि सच्चाई का अलम आज 33 साल के बाद भी लहरा रहा है। शहीद भुट्टो ने कहा था कि अगर मैं अवामी जद्दोजहद में मारा भी गया तो मरने के बाद भी कब्र से अवाम के दिलों पर राज करूंगा। और आज हम यही सब कुछ देखते हैं कि किस तरह वो मुल्क के बच्चे बच्चे के दिल पर राज कर रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं, ठीक 7 बजे आप रेडियो पाकिस्तान से खबरें सुनेंगे।